آپ جان چکے ہیں بلیٹن میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں بچیوں کے جہیز کا سامان جلنے کا واقعہ روہی بن گیا مظلوم کی آواز۔ مخیر حضرات کی جانب سے جنوبی پنجاب کی بیٹیوں کے لیے امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحیمیہ خان میں پیپلز پارٹی کے رہنما میاں عامر شہباز کا 1 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ ادھر ڈی جی خان سے پیپلز پارٹی کے رہنما سردار عباس گورچانی نے بھی امداد کا اعلان کر دیا۔ کہا جتنا ہو سکا بچیوں کے جہیز کے لیے مدد کی جائے گی۔ حکومت سے بھی متاثرہ فیملی کی امداد کا مطالبہ۔ روہی بن گیا مظلوم کی آواز۔ ملتان نواب پور اڈے کے قریب شادی والے گھر میں آتش زدگی کا معاملہ۔ مخیر حضرات کی جانب سے جنوبی پنجاب کی بیٹیوں کے لیے امداد کا سلسلہ شروع۔ رحیمیہ خان میں پیپلز پارٹی کے رہنما میاں عامر شہباز کا 1 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ ذاتی طور پہ میں 1 لاکھ روپے اپنی ان بہنوں کو دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہماری ان بہنوں نے جیسے بتایا کہ 25 سال سے میں محنت سے اپنا جہیز کو جمع کر رہی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ پورے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان کی مالی امداد کرنی چاہیے۔ ڈی جی خان سے پیپلز پارٹی کے رہنما سردار عباس گورچانی نے بھی امداد کا اعلان کر دیا۔ سردار عباس گورچانی نے کہا جتنا ہو سکا بچیوں کے جہیز کے لیے مدد کی جائے گی۔ حکومت سے بھی متاثرہ فیملی کی امداد کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جو ہم سے ہو سکا انشاءاللہ تعالی ہم ان کے کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان کی امداد کرتے، کیونکہ آج کل کے دور میں مہنگائی کے دور میں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جہیز نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے اتنی محنت سے ان کے والدین نے اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ قدرتی یہ آگ لگ گئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں بھی جو ہے نا گورنمنٹ ان کا فوری طور پہ امداد کی جائے۔ روہی کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ ایم ڈی بیت المال اون عباس بپی نے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کی یقین دہانی کرا دی۔ اون عباس بپی کا ادارے کے توسط سے بچیوں کی مالی امداد کا اعلان۔ اون عباس بپی نے کہا کہ بیت المال کی ٹیم کل جائے حادثہ کا دورہ کرے گی۔ انکوائری اگر مکمل ہو جاتی ہے، ویسے اماؤنٹ دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کسی قسم کا کوئی بھی اماؤنٹ میری طرف سے جو ہے نا وہ ان کی امداد وہ نہیں کر سکی، وہ گھر سے پورا نہیں کر سکی، لیکن بیت المال کیونکہ ہماری جو میکسیمم لمٹ ہے وہ 60,000 روپے تک ہوتی ہے، تو میں 60,000 روپے جو انشاءاللہ ان کے گھر میں ہم ڈیلیور کر دیں گے، وہ سے ان کے والد ان کا جہیز کا سامان پورا پرچیز کر سکتے ہیں۔ بیٹی کے لیے چیزیں وہ ہم ان کو پوری کروا دیں گے، اماؤنٹ کو وڈرا کر لیتے ہیں، میں ان کو گھر کا جو سامان ہے وہ ان کو پورا کروا کے دیتا ہوں۔ مخیر حضرات جنوبی پنجاب کی بیٹیوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بچیوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل ہے۔ ادھر کوہ سلیمان کے علاقے جھنڈی میں چراغاں کے تنازع پر 2 افراد کے قتل کا معاملہ۔ لواحقین لاشیں تونسا شریف لے جا کر انڈس ہائی وے کو بلاک کر دیا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی لگ گئیں۔ لواحقین نے کہا کہ بچے خوفزدہ ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پولیس ملزمان گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ بات کریں گے عظمت بزدار سے۔ عظمت بتائے گا لواحقین کا مطالبہ کیا ہے؟ جی کوہ سلیمان جھنڈی میں گزشتہ روز 2 جو گروپ ہیں ان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ان میں مانجھیانی قبائل اور میرخانی قبائل کے درمیان اس فائرنگ کے نتیجے میں مانجھیانی قبائل کے 2 افراد جاں بحق ہوئے، 2 افراد زخمی ہوئے، جس کے بعد ان کی لاشیں آج پوسٹ مارٹم کے لیے تونسا اسپتال نہیں لائیں گئی، تو انہوں نے جہاں پہ انڈس ہائی وے روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ کیا مطالبات ہیں؟ اب روڈ مکمل طور پر بلاک ہے اور جہاں پہ گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں، کیا کہیں گے، کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ہمارے ریکویسٹ ہے، 10 سال ہے، ہمارا 1 قتل ہو پہلے ہوا ہے، 2 زخمی ہے، آج 2 قتل ہوا ہے، 2 زخمی ہے۔ ابھی ہمارے بچے قتلوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، وہ ملزم پہلے والا اور ابھی والا ہمارے گھروں کے اوپر ابھی بیٹھے ہیں، ابھی فائر کر رہے ہیں، کوئی انتظام چین ہے۔ ہمارے ریکویسٹ ہے رینجر آبندہ سے حکومت بلوچستان سے ملیشیا منگائے، اس کا گرفتاری کیا جائے، ہمارے کو بہت تنگ کر رہے ہیں، ہم بہت تنگ ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ٹرائبل بیلٹ ہے تو وہاں پہ بارڈر ملٹری پولیس کا ہولڈ ہے، بارڈر ملٹری پولیس کی جانب سے ان کے ملزمان گرفتار نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے رینجر کو بھیجا جائے تاکہ وہاں پہ ان کے ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے، کیونکہ بارڈر ملٹری پولیس سے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور ان کے کنٹرول سے یہ علاقہ باہر ہوتا ہے۔ عظمت بزدار آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ڈی جی خان کے نادرہ دفتر کے باہر کرونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی کی جانے لگی، بچوں کے بے فارم بنوانے کے لیے نادرہ دفتر کے باہر لائنیں لگ گئیں۔ ڈیرہ غازی خان کے نادرہ دفتر کے باہر کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں کی جانے لگیں۔ نادرہ دفتر میں بے فارم بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں کا رش لگ گیا۔ نادرہ دفتر کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ بھجن ڈی جی خان گیا ہے، تقریباً 4 بجے آئے ہیں بے فارم کے لیے، 1 ہفتہ ہو گیا ایسے چکر لگا رہے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ادھر آتے ہیں
बोलते हैं टाइम खलास हो गया, 4 बजे ये खत्म छुट्टी करके चले जाते हैं मुझे। 30 दिन में मुलाजिम हूँ, अभी भी ग्रेड से फोन है आ जाओ ड्यूटी। मैंने कहा मैं लाइन पे खड़ा हूँ, 3 दफा मैं उनके पास गया हूँ। नादरा दफ्तर के बाहर खड़े शहरियों ने ना ही मास्क लगाए और ना ही समाजी फासला कायम रखा। नादरा दफ्तर के अफसरान SOPs फॉलो करवाने की बजाय दफ्तर के बाहर रोही टीम को कवरेज करने से मना करते रहे और कैमरा बंद करने का कहते रहे। कैमरे को हाथ ना लगाएं, कैमरे को हाथ ना लगाएं। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? अभी आपने शूट नहीं करेंगे ना सर, पहले मुझे सर्विस करना है, पता लग जाए मुझे आइडेंटिटी आप कौन है, हाँ फिर उसके बाद आगे देखते हैं। नादरा दफ्तर के बाहर कोरोना SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी से कोरोना वायरस बढ़ने का खदशा है। डेरा गाजी खान के नादरा ऑफिस के बाहर बे फॉर्म बनवाने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। कोरोना SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है और यहाँ पर लोगों को बे फॉर्म बनवाने के लिए काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सिविल एविएशन ने सफरी हिदायतनामा एक बार फिर तब्दील कर दिया। मुसाफिरों को कोरोना के हवाले से 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। सिविल एविएशन ने बैरून मुल्क से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुसाफिरों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए में शामिल मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना हासिल होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया और सऊदी अरब को शामिल किया गया है। कैटेगरी बी और सी के मुसाफिरों के लिए 96 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। CCA की जानिब से नई एडवाइजरी 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होगी। मैपको मुल्तान ने सनती सार्फिन के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती सार्फिन को बिजली 16 रुपए फी यूनिट के बजाय 8 रुपए फी यूनिट में मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। तवानाई ने मैपको के सनती सार्फिन के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के मुताबिक इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए नया प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले B1, B2 और B3 कैटेगरी के सनती सार्फिन को 16.17 रुपए फी यूनिट की बजाय 8 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली फ्राहम की जाएगी। पैकेज का दुरानिया नवंबर 2020 से जून 2021 तक होगा। मैपको रीजन के ज़ेरे इंतजाम B1, B2 और B3 कैटेगरी के सार्फिन को 1 जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 12.96 रुपए फी यूनिट बिलिंग की जाएगी, जबकि 3 रुपए फी यूनिट रिलीफ भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने फोर्ट मनरो के वासियों को 2 नए पार्क्स का तोहफा दे दिया है। DG कोहे सुलेमान अथॉरिटी कहते हैं नए पार्क्स में बच्चों के लिए झूले और सियाहों के लिए नए पिकनिक स्पॉट्स बनाए जाएंगे। गर्मियों में सयाहों को फोर्ट मनरो आकर फर्क भी मालूम होगा। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। फोर्ट मनरो आने वाले सियाहों के लिए खुशखबरी। वजीर आला ने तफरी के लिए 2 नए पार्क्स का तोहफा दे दिया। दोनों पार्क्स को अप्रैल तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। DG कोहे सुलेमान अथॉरिटी मकबूल अहमद ने रोही को बताया कि फोर्ट मनरो में नए पार्क्स में बच्चों के लिए झूले जबकि सियाहों के लिए तफरी स्पॉट बनाए जाएंगे। 11 सड़कें हमारी इंशाल्लाह वो हम उसको मुकम्मल करेंगे, 2 पाई बास मुकम्मल करेंगे, 3 पार्क मुकम्मल करेंगे और इसके अलावा भी हमारी 8-10 और छोटी मोटी स्कीमें हैं। वो तफसील अब इतना मुख्तसर वक्त में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारा एक पूरा पैकेज है जो मौजूदा CM के विजन के मुताबिक हम अल्लाह के फजल और करम से वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। DG का मजीद कहना था कि गर्मियों में आने वाले सियाहों को फोर्ट मनरो में आकर फर्क मालूम होगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, DG खान। वज़ीर आला पंजाब ने एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला के भाई सरदार उमर खान बुज़दार ने बार्थी में लग्जरी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अजमत बुज़दार की रिपोर्ट देखिए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने तौंसा के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। कोहे सुलेमान के कबायली अब लग्जरी बसों में सफर करेंगे। वजीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान बुज़दार ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने लोगों के हमरा सफर भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा नासिर शहजाद डोगर ने बताया कि भारती और फासला के अवाम के लिए अब लग्जरी बसें चलेंगी। अवाम सिर्फ 150 किराए पर भारती से तौंसा का सफर कर सकेंगे। दूसरे मरले में फासला कुछ के अवाम के लिए भी बसें चलेंगी। हाई जो है वो एक कंफर्टेबल जो है वो ये बसें, तो ये सुबह भारती से 8 बजे रवाना होगी और तौंसे पहुंचेगी और तौंसे से 2 बजे जो है वो वापस भारती के लिए। तो हमारे बहन भाई जो तौंसे में काम कर रहे हैं या भारती जो जा रहे हैं, हमारे जो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं या कोई अपने और मामलात के लिए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बस सर्विस उनके लिए एक नेमत से कम नहीं है। कोहे सुलेमान के कबायली पहले डालों में सफर करते थे, अब लग्जरी बसें चलने से लोगों को मजीद आसानी होगी। कैमरा टीम के साथ असफत बुज़दार, रोही, तौंसा शरीफ। सेक्रेटरी मवासलात जनूबी पंजाब उस्मान अली खान ने मुल्तान का दौरा किया। मतीतल डबल रोड के तामीराती काम का जायजा लिया।
सेक्रेटरी मवासलात जनूबी पंजाब उस्मान अली खान ने पहली दफा मुल्तान का दौरा किया और मतीतल डबल रोड के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मतीतल रोड पर 951 मिलियन लागत आएगी और इसे अगले साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर एक्सिन हाईवे गुलाम नबी ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मवासलात जनूबी पंजाब उस्मान अली खान का कहना था कि रोड की तामीर पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से मतीतल रोड अहमियत का हामिल है। फुटबॉल के शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, फुटबॉल ग्राउंड के पवेलियन की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। 25 मिलियन की लागत से पवेलियन को तामीर किया जाएगा। अरसद दराज से खस्ता हाली का शिकार पवेलियन ग्राउंड के पवेलियन की भी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पवेलियन की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स दे दिए गए। पवेलियन को 2005 में बनाया गया था। पवेलियन में मौजूद वॉशरूम्स, ड्रेसिंग रूम्स की अबतर सूरत हाल थी। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना था कि हम MNA आमिर डोगर के मशकूर हैं, जिन्होंने पवेलियन की तज़ीन और आराइश का काम कराने का बेड़ा उठाया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को 25 मिलियन रुपए दिए। उनका मजीद कहना था कि फुटबॉल ग्राउंड में फ्लड लाइट्स भी लगाई जाएंगी। पवेलियन का काम रवां माह में शुरू कर दिया जाएगा। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ के दही अस्पतालों में अब शाम के वक्त भी इलाज की सहूलत फ्राहम होगी। महकमा सेहत ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर समेत तिब्बी अमला भर्ती करने का फैसला कर लिया। पंजाब सरकार का ऐसा इकदाम बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ के दही अस्पतालों में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज, LHVs भर्ती करने का फैसला कर लिया। दोनों अजला की मुख्तलिफ अस्पतालों में 106 आया भी भर्ती की जाएंगी। 3 चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहावलपुर और 3 मुजफ्फरगढ़ में भर्ती किए जाएंगे। 12 अस्पतालों में खुसूसी इवनिंग शिफ्ट के तहत डॉक्टर्स को भर्ती किया जाएगा। डिलीवरी की सहूलत 24 घंटे फराहम करने के लिए 94 LHVs को भी भर्ती किया जाएगा। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की जानिब से मरहूम सीनियर बुकला की याद में ताज़ती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मरहूमैन की खिदमात को सराहा गया। सदीकी हाल में इंतकाल कर जाने वाले मेंबरान की याद में ताजियती रेफरेंस मुनकिद किया गया। सीनियर वुकला हकीम अमीर बख्श अवान, साहबजादा फारूक अली खान, सरफराज अली कुरैशी, मौलवी सुल्तान आलम अंसारी, मखदूम जाहिद हुसैन शमसी, मियां जमाल अराई, मोहम्मद इकबाल खोखर, चौधरी मोहम्मद अरशद, मलिक सईद अख्तर, मोहम्मद गफ्फार हाशमी, मोहम्मद अफजल मैतला, अब्दुल करीम चुगताई, सैयद नाजिम हुसैन शाह और नासिर हुसैन हैदरी एडवोकेट की खिदमात को सराहा गया। मौलवी सुल्तान आलम साहब के साथ वकालत के बाद एक इंट्रैक्शन हुई। मैंने इनसे काम सीखा कि मौलवी साहब उस वक्त मोस्टली बैंकिंग का काम करते थे। मैंने बहुत कुछ सीखा। साहबजादा फारूक साहब क्रिमिनल लॉ में एक बहुत बड़ा नाम। बार ओहदेदारान का कहना था कि बिछड़ने वाले वुकला बार का सरमाया थे, उनके खला को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। एक एक करके सितारों की तरह टूट गए। हाय क्या लोग मेरे हल्क़े अहबाब में थे। अमीर बख्श आवान मेरे उस्ताद से, इनसे हम पढ़ा करते थे। साहबजादा फारूक अली वो थे जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के नाम का परचम पहली दफा 9 नंबर चौके पर बुलंद किया था। मेरा लड़कपन था। इस मौके पर मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी और मगफरत के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। दीगर खबरों में आपको बताएं कि रहीमिया खान में कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की सरबराही में इजलास हुआ है। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन से मुलाकात की और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है। कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की सरबराही में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, अली शहजाद समेत महकमों के सरबराहों ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि अवामी बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। शहरी और दही इलाकों में सेहत, तालीम, सफाई और म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर बहावलपुर ने जिले की रैंकिंग बेहतर करने के लिए तालीम और सेहत के शोबे में बेहतरी लाने की हिदायत की। मेंबरान कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ाइश, मखदूम मुबीन अहमद, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक, तहरीक इंसाफ की ज़िलाई क़यादत, टिकट होल्डर और मेंबरान असम्बली के नुमाइंदों ने भी कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर बहावलपुर ने अब्बासिया फ्लाईओवर, न्यू जनरल बस स्टैंड और मियांवाली कुरैशिया का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया।
एहतसाब के दारों के बाद कमिश्नर मुल्तान इन एक्शन। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुलाजमीन और अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी जायदादों और गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन का कड़ा एहतसाब शुरू हो गया। नया मुल्तान एंटी करप्शन के बाद कमिश्नर मुल्तान भी इन एक्शन दिखाई दिए। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी रिहाइशगाहों की तफसीलात तलब कर ली। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के हवाले से भी तफसीलात तलब की गई हैं। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। उनका कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन असासों की तफसीलात कमिश्नर ऑफिस में जमा कराई जाएं। चौदह माह गुजर जाने के बावजूद पेपर न लेने का मामला। ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम मियां खान के MCS फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया है। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने तलबा से मुलाकात की और फौरी मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम मियां खान के MCS फर्स्ट सेमेस्टर के तलबात पेपर्स न होने पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया। मुतासरा तलबात का कहना था कि कॉलेज का इस्लामी यूनिवर्सिटी से इल्हाक है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 14 माह गुजरने के बावजूद भी पेपर्स नहीं लिए। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के पेपर्स न होने से तलबा का तालीमी सिलसिला रुक गया। 14 माह हो गए हैं और हमारा पहला सेमेस्टर नहीं हुआ। हम 19 से 21 का बैच थे और 21 आने वाला है और अभी तक हमारा पहला सेमेस्टर नहीं हुआ। अगर IUB की यही रवश जारी रही तो फिर तो हमारा तालीमी सिलसिला रुक जाएगा। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने मुजाहिरीन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस सादिया रशीद से मुलाकात की। स्टूडेंट्स का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फोन किया और हमारे मसाइल की आगाही दी, जिस पर वाइस चांसलर ने फौरी पेपर्स लेने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी डायरेक्टर साहबा को मैम को बुलाया है, उनसे बातचीत की है और हमें मतलब कि यकीन दिलाई है कि हम आपके पेपर लेते हैं, लेकिन हमें कोई डेट फिलहाल कोई इशू डेट नहीं की कि जिसकी वजह से हमें ये यकीन हो कि हमारे पेपर होंगे। तलबा का कहना था कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएं। इंतजामिया की यकीन दहानी पर जहां स्टूडेंट्स ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया तो वहीं दूसरी जानिब पेपरों की तैयारी भी शुरू कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम मियां खान। और सरगोदा के अंदरून बाजारों में बनाए गए पार्किंग स्टैंड्स नाकाम। 3 ब्लॉक पार्किंग स्टैंड को जाने वाली गलियों से गुजरना मुहाल हो गया। पार्किंग स्टैंड्स की जगह पर सालों से कारोबार करने वाले ताजिर बेरोजगार हो गए। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा शहर के अंदरून बाजारों में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। ताहम सरकारी अराजी पर 20 सालों से कारोबार करने वाले हजरात को तजावजात की मद में उठा दिया गया। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि अरसा दराज से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया ने ताजर बरादरी की मशावरत के बगैर क्रैक डाउन करके पार्किंग स्टैंड कायम किया। ये कम अज कम 300-350 करीब फट्टे लगे हुए थे, जिन लोगों को उठा के इनका बेरोजगार बंद कर दिया गया और कम अज कम हर घर के 5 से 6 अफराद हैं। 5-6 अफरादों को आप तकसीम करें कि कितने घरों के चूल्हे बंद कर दिए हैं। हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों का ख्याल किया जाए। स्टैंड एक आदमी ने खाना है, यहाँ से 350 जो दुकानदार हैं वो सब बेरोजगार हुए हैं। अगर भाई स्टैंड बनाना है, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के इनसे कहता हूँ कि खुदारा इस स्टैंड को अगर आपने बनाना है तो भाई ये 19 ब्लॉक का चौक, इतना ही चौक है वो भी, वहां बना ले। अंदरून बाजारों में कायम किए गए पार्किंग स्टैंड नाकाम होकर रह गए। 3 ब्लॉक समेत दीगर ब्लॉक्स में कायम किए गए पार्किंग स्टैंड को जाने वाली गलियों से गुजरना महाल होकर रह गया। ताजा रहनुमाओं का कहना था कि अगर खुली जगहों पर पार्किंग स्टैंड बनाए जाते तो शहरियों को कोई रिलीफ मिलता। ये कामयाब नहीं है क्योंकि ये सरगोदा शहर के अंदर है और उसके बाद ये 10 ब्लॉक चौक खाली पड़ा है, 8 ब्लॉक चौक खाली पड़ा है, कंपनी बाग सारा खाली पड़ा है, 19 ब्लॉक सारा खाली पड़ा है, 9 ब्लॉक सारा खाली पड़ा है। समझना सिर्फ और सिर्फ इस सारी टोटल इस इंतजामिया की और इस हुकूमत की जो नज़र है वो 3 ब्लॉक चौक पे है। भाई सिर्फ ये चौक खाली हो जाए, यहाँ के गरीब आदमी जो 1500-2000 आदमी रिज़्क़ कमा रहा था वो ना कमाए। दूसरी जानिब तर्जुमान जिले इंतजामिया का कहना है कि पार्किंग स्टैंड को जाने वाली गलियों को भी खोला जाएगा। सरगोदा के अंदरून बाजारों में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करके पार्किंग स्टैंड तो कायम किए जा रहे हैं, लेकिन इससे सैकड़ों मजदूर जो हैं बेरोजगार हो गए हैं।
कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह सरगोदा। रहीमिया खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने तहकीक में पहला कदम उठा लिया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का पहला रिसर्च जर्नल जारी कर दिया गया। मजीद देखिए आसिम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और तालीमी म्यार की जांच इसके तहकीकाती जर्नल से की जाती है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी का पहला जर्नल जारी कर दिया। कैफ्यूट जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के एडिटर डॉक्टर समीना सरवत है। पहला जर्नल को वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने जारी किया। वाइस चांसलर का कहना है कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का तहकीकाती जर्नल का जारी होना खुश आइंद है। आइंदा 2 माह में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के भी जर्नल जारी कर दिए जाएंगे। ये पहला रिसर्च जर्नल हमने आज लॉन्च किया है और इसकी कोई इंटरनेशनल रिव्यू होते हैं, लोकल रिव्यूअर्स होते हैं, वो प्रोसेस को 5-6 महीने का वो कंप्लीट हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हम विद इन 2 मंथ 3 और जर्नल लॉन्च करेंगे। डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर असगर हाशिमा का कहना था कि तहकीकाती जर्नल यूनिवर्सिटी के लिए एजाज की बात होती है। इसके एडिटर बोर्ड में मुकामी और बैनुल अक़वामी एडिटर भी शामिल है। जर्नल जो है एक बहुत बड़ा ऑनर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी आपको पता है कि बहुत यंग यूनिवर्सिटी है और यंग यूनिवर्सिटी के होते हुए भी हमने ये इंटरनेशनल जर्नल जो है ये इसको हमने पब्लिश किया है। आज उसकी इनाग्रेशन थी और वाइस चांसलर सुलेमान ताहिर साहब ने इसको इनाग्रेट किया है। एडिटर रिसर्च जर्नल डॉक्टर समीना सरवर का कहना था कि यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल का पहला इशू पब्लिश किया है। इसकी जल्द ही हार्ड कॉपी भी शाया की जाएगी। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल है जो